yesterday we were describing that when the load varies, reactive power varies because of the variation in the reactive power demand. There is a continuous need to have the excitation control. There is continuous control of excitation is required, and to meet the reactive power demand. If the excitation is not controlled continuously with monitoring of the reactive power demand, then we will not be in a position to control the voltage, to maintain the voltage of the buses as a constant one. So, but that is not, we cannot afford to change in voltage of the buses. We want voltage of the buses should be within a specific range, a specific limit. Each bus should have the 1 per unit voltage with variation of plus minus 5% in transmission lines. So that is not, change in voltage beyond that is not allowed, and that's why we need to continuously monitor the reactive power demand and continuously vary the excitation accordingly. We have described the self-excited rotating type excitation system. Then we developed the model of we developed a boost-buck excitation system. This was the boost-buck excitation system. We described how it works. Then we have derived the different equations of the boost-buck excitation system. These were the equations which we derived. These are the equations which we derived. And finally, the block diagram model of the boost-buck excitation system was developed by like this. So this was the block diagram of the boost-buck excitation system which we explained yesterday. So if you have, this is the review what we described yesterday. If you have any query in this, you can ask so that we can go ahead. Yes. Is there any query in this, Jagveer? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ, कोई query है यहाँ तक? No, sir. Okay. So now, once we know about the model of the excitation system, we can do the performance analysis of this. Performance analysis means what is the steady state analysis, what is the transient analysis, that we can see. The steady state analysis means if the terminal voltage changes, how much change in excitation is required. So this performance analysis we can do. For doing the performance analysis, we have to take the transfer function. Transfer function means, suppose we can take VF by VR. Transfer function here. VF means if variation in the regulating voltage, what will be the change in the excitation. So VF by VR means or change in the regulation voltage of some say for example 0.1 per unit, what will be the effect on the excitation. So for this transfer function of this will be it is a GS, it is a HS, SC dash. What is SC dash? It is the saturation and described by SC KE1 plus 1, KE plus 1. It is the saturation. This is because of the VH curve. VH curve is not flat, that's why this SC dash is coming. So VF by VR will be, it is a GS, HS. So VF by VR will be GS oblique 1 plus GS HS. So GS oblique 1 plus GS and HS, if you do this, you will find this equation. Okay? ये इक्वेशन आएगा, आप साथ के साथ भी करके देख लीजिए. GS लिखिए डिवाइड बाई 1 प्लस फिर ये GS लिखिए, फिर HS की जगह SC लिखिए. So you will get this equation. Okay. Now this VR by VT terminal voltage. How much regulatory voltage will change for change in the terminal voltage? So VR by VT will be the K1 plus STA multiplied by KR1 plus STR. This putting this multiplying both, you can get VF by VT. Means VF by VT means this divided by this. For change in terminal voltage, how much excitation will change? So VF by VT will be this. VF by VT, this equation means multiplication of the two. Multiplication of the two will come VF by VT. It is a VF by VT, it is a transfer function. So it is a transfer function for VF by VT. Now we want to change, we want to find how much change in the excitation will be there for change in the terminal voltage.
or say 1 per unit change in the terminal voltage, say this del Vt, it can be Vt by, if it is per unit change, so you can say it can be Vt by S, del Vt by S here. And if we apply the final value theorem for steady state analysis, what is the final value theorem? कार्तिकेय बता सकते हैं what is the final value theorem in control system? Mitesh? Mitesh? Yes, sir. What is final value theorem? देखिए आपने कंट्रोल सिस्टम में बहुत बार पढ़ा है और मैं भी इसको आपको एजीसी व्हाइल डिस्क्राइबिंग द एजीसी हमने बहुत बार बताया है. Several time I told. Yes. A transfer function of output upon the input. Yes. Is It is SFS S tends to 0 means अगर आपको V सपोज कोई V ये VF निकालना है at t इक्वल टू इंफिनिटी मीन फाइनल स्टेडी स्टेट में VF निकालना है तो VFS into S and S tend to 0. तो ये T response निकालता है फाइनल वैल्यू. Finally what will be the time response if the Laplace is given, if the Laplace transform is given, what will be the time dependent time response? So this VFT will be the Vt, Laplace of Vt will be Vt by S and multiply S, so SS will be cancelled, then finally S tend to 0. तो इसमें S tend to 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. So what will be the KR K8 divided by KE plus SE dash. K is the gain of the amplifier, KR is the gain of the regulator, KE is the gain of the excitation, this exciter, and SE dash is the saturation. So accordingly the steady state change in the VF will be there. मतलब टर्मिनल वोल्टेज में 1 पर यूनिट चेंज हो तो एक्साइटेशन में इतना चेंज हो जाएगा. तो दिस इज द स्टेडी स्टेट एनालिसिस. अगर इसको डायनेमिक एनालिसिस करना हो तो जैसे हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस करना हो तो जैसे पहले किया था कि इसमें देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. तो न्यूमरेटर क्या था इन केस ऑफ व्हाट वाज द मैटलैब कमांड फॉर चेंज इन डेल वीटी में 1 पर यूनिट चेंज होने के लिए डेल पीटी एस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो इसका रेस्पॉन्स VFT इसका क्या था DVT एंड स्टेप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कॉमा डिनोमिनेटर कॉमा टी. ये तो एक कमांड था मैटलैब कमांड ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए. देखिए आपने एजीसी में भी यही किया है. अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होगा आपने एजीसी में भी थ्योरी में भी पढ़ा है, प्रैक्टिकल में भी आपने प्रैक्टिकल क्लासेस में भी इसको हमने अच्छी तरह समझाया हुआ आपको. तो इसका स्टेप डीवीटी, इसमें डीवीटी जो भी अगर स्टेप रेस्पॉन्स है तो आप स्टेप लिखेंगे स्टेप और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इस फॉर्म में आएगा. तो इसका न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर व्हाट इज न्यूमरेटर व्हाट इज डिनोमिनेटर और स्टेप रेस्पॉन्स. स्टेप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमा टी करेंगे तो इसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आ जाएगा. सो वी नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन. एक बार आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया है और थ्योरी में भी एजीसी में समझा दिया है. तो व्हाटएवर विधि अब एक्साइटेशन सिस्टम हो या कोई दूसरा सिस्टम हो इसका आपको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालना है. सेम फार्मूला और यू कैन से सेम इंस्ट्रक्शंस same command will be applicable, then you can find the transient response. अब इसका स्टेट स्पेस मॉडल, so we will develop the state space model of this. इसका स्टेट स्पेस मॉडल डेवलप करना. जस्ट टू अंडरस्टैंड फर्दर इसका स्टेट स्पेस मॉडल डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, राइट द इक्वेशन फॉर दिस, राइट द इक्वेशन फॉर दिस, राइट द इक्वेशन फॉर दिस, देन राइट द इक्वेशन फॉर जनरेटर. यहाँ केजी प्लस 1 प्लस एसटीजी और यहाँ एक्साइटेशन में चेंज करें तो टर्मिनल वोल्टेज में कितना चेंज आएगा. तो ये इसके लिए हमने 4 इक्वेशंस लिखेंगे. 1 इक्वेशन हियर, 1 इक्वेशन हियर, 1 इक्वेशन हियर, 1 इक्वेशन हियर, केजी 1 प्लस एसटीजी वीटी बाई वीएफ. तो ये 4 इक्वेशन लिखेंगे. 4 इक्वेशन का मतलब ये कैसे लिखेंगे, वीएफ बाई वीआर. इसको करेंगे वीएफ बाई वीआर. देखिए
इसको जैसे अभी किया था ना, ये VF by VR, ये क्या आया था, सॉरी, हाँ ये आया VF by VR, ये आया। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दिस विल बी द KE S टाइम VF, मतलब VF डॉट, ये VF डॉट हो गया, एक इक्वेशन ये बन गया VF डॉट। यस, इज देयर एनी डिस्कशन नीडेड, कुछ पूछना है? इसका स्टेट स्पेस मॉडल बना रहा हूँ। है कि हमारे नीचे है। म्यूट करो अपना मोबाइल। हेलो, हाँ, हु इज स्पीकिंग, बोलिए, कुछ पूछना है इसमें? ये देखिए स्टेट स्पेस मॉडल के लिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, व्हेन इट विल गो इट इज VF KE एंड SE VF प्लस STE VF, S मींस लाप्लास, सो इट विल बी VF डॉट। तो ये हमारा VF डॉट के एक इक्वेशन आ गई, VF डॉट यहाँ। फिर इसको करेंगे VR by V क्या है, दिस इज ए VR by दिस V रेफरेंस माइनस VDC, VR by V रेफरेंस माइनस VDC इज इक्वल टू K1 प्लस STA। तो ये जब करेंगे तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा VR, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। देन VDC by VT करेंगे, VDC by VT, तो एक इक्वेशन यहाँ आ जाएगी, प्लस यहाँ VT by VF KG1 प्लस STG, एक इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। सो देयर विल बी 4 इक्वेशंस। तो ये हमारी 4 इक्वेशन आ गई, ये 4 इक्वेशन आएंगी। कैन यू डू दिस, आप लोग ये कर सकते हो या नहीं नितेश? यस सर। हाँ, तो ये 4 इक्वेशन आएंगी, आप करके देखिए, बहुत बार आपको सेम चीजें बताई हुई है। द 4 इक्वेशन यू कैन राइट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। इट इज ए x डॉट इज इक्वल टू x प्लस bu। तो हमारा इस टाइप का आ जाएगा, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। v रेफरेंस में अगर चेंज करेंगे तो हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज, रेगुलेटर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड DC वोल्टेज, ये कितना कितना चेंज होगा। ये हमारा x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। अब इसको सॉल्व करना, स्टेट स्पेस मॉडल है, इसको सॉल्व करने का क्या कमांड होता है? व्हाट इज द कमांड ऑफ सॉल्विंग द स्टेट स्पेस मॉडल, बताओ, आपको बताया हुआ है मैंने। व्हाट इज द कमांड ऑफ सॉल्विंग द स्टेट स्पेस मॉडल? Yes, Nitish, can you tell me? स्टेट स्पेस मॉडल है x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। इसमें हमने x के लिए या y के लिए सॉल्व करना है। सपोज y इज इक्वल टू cx प्लस du, y मतलब जो भी हम देखना चाहते हैं, c अकॉर्डिंगली वी डिसाइड सो दैट y इज इक्वल टू cx प्लस du। सपोज हमने एक्साइटेशन वोल्टेज देखना है, तो c की वैल्यू क्या लेंगे, 1 0 0 0 एंड x की वैल्यू है y इक्वल टू cx प्लस du। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, स्टेट स्पेस मॉडल को सॉल्व करने के लिए क्या कमांड होता था, क्या कमांड बताया था हमने आपको? यस यस, हाँ, y(x) इज इक्वल टू स्टेप a, bu, c, d, 1, t, देन ब्रैकेट क्लोज्ड सेमीकोलन। ये कमांड था स्टेट स्पेस मॉडल। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल अप्लाई द सेम कमांड एंड वी कैन सॉल्व इट फॉर द एनी वैल्यू। हम अगर VF देखना चाहते हैं, वी कैन प्लॉट VF, वी कैन प्लॉट VR, वी कैन प्लॉट VT, वी कैन प्लॉट VDC, इन सबको प्लॉट कर सकते हैं। दैट अगर हमारा रेफरेंस में चेंज हुआ 1 पर यूनिट की जगह अगर सपोज करिए हमारा 0.9 पर यूनिट कर दिया, तो ये कैसे वेरी करेंगे, दैट वी कैन डू। नाउ यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, ये बूस्ट बक एक्साइटेशन सिस्टम लिया। वी हैव टेकन दिस सिस्टम एंड
then we have derived the state space model. We have derived this state space model, and finally we have developed the we have derived the block diagram model. Then we develop the state space model. Now, and we can see the response, किस तरह का response आता है. And now we want to improve the response. ये तो पता लग गया हमारा basic system है, उसका ये response है. Now our intention is to improve the response. जैसे हमने AGC में किया था, frequency vary हो रहा था, इंटीग्रेटर लगा के स्टेडी स्टेट एरर रिमूव कर दी, देन कंट्रोलर लगा के ऑप्टिमल कंट्रोलर लगाया, और वी हैव सीन वी कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, कि हमारा सिस्टम जल्दी स्टेबलाइज हो जाए, टाइम रिक्वायरमेंट इज लेस, और पीक शूट ओवरशूट भी कम हो. ऐसे ही यहाँ पे अभी वी कैन इंप्रूव द सिस्टम. तो इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी डिड, The IEEE have floated one model. IEEE ने क्या कहा कि आप ये एक सिस्टम देखिए, this system is same up to here everything. This was the KR1 plus STR, जैसे पहले था KA plus 1 ST एम्पलीफायर जो बूस्ट बक एक्साइटेशन में था, KE1 plus ST एक्साइटर जो उसमें था सेम है, KG1 plus STG VF लगाएंगे टर्मिनल वोल्टेज आएगा, ये भी सेम है, और ये VT यहाँ आ रहा है. So everything is same except this compensator is there. So IEEE is a international electrical electronics institutions that has given this model. It is called the IEEE type 1 excitation system. इन्होंने क्या कहा, एक तो ये कंपनसेटर लगाए स्टेबलाइजर, दूसरा एक ये सिग्नल लगाया एडिशनल सिग्नल, एंड दे टोल्ड प्लीज डू द रिसर्च ऑन दिस. इस कंपनसेटर पर आप अपना प्रैक्टिकल करिए, रिसर्च करिए, एंड टेल when how much you can improve the performance को हर स्टेप का कितना और कौन इंप्रूव कर सकता है. मींस एक तो इसका इफेक्ट इंक्लूड कर लीजिए, दूसरा if this signal can be taken from the or can be derived from the speed of the generator, this signal can be derived from the active power of the terminal, this signal can be derived from the reactive power of the terminal, and this signal can be derived from the power angle of the terminal, power angle of the generator. So then we can see the response. अगर हमने ये इस सिग्नल को चेंज किया, then what will be the response and which response is better? That is that we can do, or any researcher can make any analysis and can suggest so that the performance is further improved. Now we will study, or we will find the block diagram model of this. First of all, we will develop the block diagram model of this IEEE type 1 excitation system. Then with the same method which we have seen above, with the same instruction of MATLAB, we can solve it for the performance analysis. Means देखिए, it is same. ये VF by VR जैसे पहले इक्वेशन था, VF by VR सेम इक्वेशन, VF by VR is equal to KE1 plus ST प्लस SE डैश, ये इक्वेशन आया, इसको सॉल्व किया तो जैसे पहले किया था सेम इक्वेशन ही है. इट इज द सेम इक्वेशन, सॉरी, ये दिस इज द सेम इक्वेशन. ये VF डॉट का जो इक्वेशन है, ये दिस इज द इक्वेशन फॉर VF डॉट. ये हमारा सेम इक्वेशन जो पहले एक्साइटेशन में ड्राइव किया है, सेम इज देयर. ओनली डिफरेंस इज, देखिए यहाँ भी सेम इक्वेशन होगी, VR by VE सेम इक्वेशन होगी, एंड VDC by VT इट विल बी सेम इक्वेशन, VT by VF KG1 plus ST सेम इक्वेशन. ओनली डिफरेंस इज हियर, केवल ये एक्स्ट्रा ब्लॉक आ गया, दिस ब्लॉक इज देयर. तो दिस इज VS divided by VF is equal to this. So VS divided by VF is equal to this. So VS into this and VF into SKF. So VF multiplied by SKF means VF dot. यहाँ VF dot आ जाएगा और इसमें VS dot आ जाएगा. तो suppose this equation come, ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी. ये है, यहाँ VS dot है, सॉरी दिस, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये VS dot आएगा, ये VS dot. तो यहाँ भी VS dot है, ये VF dot है.
Vf डॉट का वैल्यू यहाँ से, ये जो इक्वेशन पहले ऑलरेडी हमने ड्राइव किया है, जो बूस्टरबर्ग एक्साइटेशन सिस्टम के इक्वली है, ये Vf डॉट की वैल्यू यहाँ रख देंगे. So there will be one equation for Bs, one additional equation for Bs dot has come. So this equation can be written like this. Bs dot, this equation is like this. ये है Vs, it is Vs dot this equation. तो उसके अलावा rest equations are the same. Rest equations are the, केवल ये एक Vs डॉट, उसमें जितनी इक्वेशन थी इसमें एक ही इक्वेशन और आ गए, उसमें 4 इक्वेशन थी, 1 2 3 4 5, ये Vs डॉट एक इक्वेशन बढ़ गया. दिस इक्वेशन इज इंक्रीज्ड, दिस Vs डॉट हैज बीन एडिशनली एडेड हियर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. और इसको सॉल्व करने के लिए फिर सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर इज देयर टू सॉल्व इट. क्या स्टेटिस्टिक्स मॉडल है, तो सॉल्व करना है तो बाई कॉमा एक्स इक्वल टू स्टेप ए कॉमा बी यू कॉमा सी डी 1 टी, सेम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. और वी कैन सी द रिजल्ट. इसमें जो स्टेबलाइजर लगाया है, स्टेबलाइजिंग सिग्नल लगाया है, ये वाला कंपनसेटर फॉर स्टेबलाइजर, इसका इफेक्ट दिखेगा. एंड दिस, so response of this will be slightly better than the बूस्टरबर्ग एक्साइटेशन सिस्टम. जो बूस्टरबर्ग एक्साइटेशन सिस्टम था, इसका रिजल्ट उससे थोड़ा बेटर आएगा. प्रैक्टिकली आपको एक ही इंस्ट्रक्शन है, बार बार लगाना है. प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छी तरह समझा दिया है. तो आप यू अप्लाई इट ऑन द मैटलैब. आप अपना सिस्टम ओपन करें, मैटलैब में इसमें प्रोग्राम लिखें और इसको यू सी द रिजल्ट. वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन एंड अगेन. आप अपना रिजल्ट खुद देख सकते हैं, एंड यू विल फाइंड दिस इज स्लाइटली बेटर देन the बूस्टरबर्ग excitation system. Okay, so further we can see the effect of PID controller. पहले हमने यहाँ PID लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा. तो same things we don't want to again describe the various things. One, now we will describe this static excitation system. देखिए अभी तक आपने पहले वो क्या किया था, रोटेटिंग सेल्फ एक्साइटेशन एक्साइटर देखा था. रोटेटिंग सेल्फ एक्साइटेशन टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम, सेल्फ एक्साइटर टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम. उसमें क्या था, डीसी एक्साइटर था. डीसी एक्साइटर का ड्रॉबैक हमने बताया था. व्हाट वाज द ड्रॉबैक? कम्यूटेशन एंड मेंटेनेंस वाज वेरी, देयर वाज लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन द कम्यूटेशन एंड लॉट ऑफ स्पार्किंग वाज देयर. सो the process need to be changed again and again. It was a great loss of energy. That's why it is now proposed the static excitation system. उसके इफेक्ट को देखते हुए हम static excitation system, we can see this is the static excitation system. Okay, are you online? सभी लोग लाइन पे हैं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, कुछ पूछना तो नहीं है? जो अब तक बताया उसमें कुछ पूछना तो नहीं है? No sir. अभी तक आपको डीसी एक्साइटर था वो, अब इसमें स्टैटिक एक्साइटेशन लगाया है. उसका बेनिफिट क्या होगा, आपके प्रोसेस स्पार्किंग कम होगा, एनर्जी कंज्यूमशन, एनर्जी वेस्टेज इन द कम्यूटेशन विल नॉट बी देयर. ओके, तो ये आपको पता लग गया कि क्या उसका बेनिफिट है, लेकिन हाउ मच बेनिफिट इज देयर और परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे तब पता लगता है. ओके, शुड वी गो अहेड, आगे बढ़े? हेलो, हाँ रोबिन ठाकुर, आगे बढ़े? हाँ सर. ओके, नाउ सी इट इज a static excitation system. देखिए ये दिस इज ए मेन जनरेटर और ये इसका एक्साइटर है, फील्ड करंट. इसमें फील्ड करंट देंगे. ये फील्ड करंट कहाँ है, इसके रोटर पे है. यहाँ रोटर है, रोटर रोटेट कर रहा है, उस पर ये फील्ड करंट है. जब इसमें फील्ड करंट इधर से आएगी तो बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड. दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और दिस पावर गोज टू द ग्रिड. ये हमारा ग्रिड से कनेक्टेड है. मींस ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर है. इसमें ये रोटर के ऊपर ये वाइंडिंग है, रोटर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पावर इलेक्ट्रिकल
पावर एसी जनरेट हो रही है, दिस पावर गोज टू द ग्रिड, ये ग्रिड में जाती है यहाँ। नाउ पहले क्या था, ये जो डीसी करंट, ये जो करंट था ये डीसी जनरेटर से आता था, यहाँ ये डीसी जनरेटर से करंट आता था और उसका ड्रॉबैक आपने देख लिया है। तो इसकी जगह ये डीसी से आने की बजाय दिस फील्ड करंट कम्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ, जो पावर जनरेट हो रही है इसी को हमने एक ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके, ये सपोज ये पावर जनरेट हो रहा है से 20 kV पे, तो 20 kV से स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट में हमने स्टेप डाउन कर लिया। ये यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड टर्शरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग पे R1 R2 R3 ये क्या है, ये रेक्टिफायर लगा दिया, ये रेक्टिफायर लगा दिया, फुल कंट्रोल रेक्टिफायर लगा दिया और यहाँ सप्लाई R1 R2 R3 दिया। यहाँ से जो पावर जनरेट हो रही है, जो सप्लाई जनरेट हो रही है, इसी को हमने यहाँ दिया। दिस इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, दिस डीसी वी कैन कंट्रोल बाय फायरिंग दीज थायरिस्टर्स। इन थायरिस्टर्स की फायरिंग एंगल के अकॉर्डिंगली हम कितना डीसी करंट देना है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस पावर गोज टू द फील्ड ऑफ अल्टरनेटर। तो जितना अब क्या था, वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिव पावर डिमांड, हमें रिएक्टिव पावर डिमांड वी हैव टू कंट्रोल द एक्साइटेशन। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से फील्ड करंट के थ्रू ये एक्साइटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नाउ क्वेश्चन इज, अब जस्ट टू स्टार्ट दिस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, फील्ड करंट चाहिए ना। बिना फील्ड करंट के यहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। और इस फील्ड करंट को देने के लिए यहाँ वोल्टेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वोल्टेज होना चाहिए। जब तक ये वोल्टेज नहीं होगा ये डीसी, ये रेक्टिफायर काम नहीं करेगा और यहाँ फील्ड करंट नहीं आएगी। सो व्हाट इज नीडेड फर्स्ट, पहले क्या चाहिए, पहले फील्ड करंट चाहिए या वोल्टेज, ये कैसे आपस में काम कैसे करेंगे, क्योंकि जनरेटर को फील्ड करंट चाहिए, फील्ड करंट को ही जनरेटर की पावर चाहिए। तो कैसे स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग इज डन फ्रॉम आउटसाइड, स्टार्टिंग इज डन फ्रॉम द आउटसाइड। ये स्टार्टिंग में हमने बैटरी के थ्रू, ये जो हमारा पावर हाउस है, पावर जनरेटिंग स्टेशन पे है, वहां बैटरीज के थ्रू हमने इसे एक्साइटेड स्टार्टिंग फील्ड करंट देते हैं। वंस इट इज स्टार्टेड देन वोल्टेज इज जनरेटेड, फ्रॉम द वोल्टेज जनरेटेड इज रेक्टिफाइड एंड कंट्रोल्ड करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। तो ये हमारा फील्ड फ्लैश कॉन्टैक्ट है, स्टार्टिंग में केवल काम आते हैं और उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नाउ अब देखिए इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ टू कंट्रोल दिस थायरिस्टर, बिकॉज यहाँ रिएक्टिव पावर डिमांड चेंज हो रही है ग्रिड में, तो अकॉर्डिंगली आपको एक्साइटेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्साइटेशन कंट्रोल करने के लिए इसके फायरिंग एंगल कंट्रोल करना होंगे, तो दैट्स व्हाई दिस इज ए फायरिंग कंट्रोल यूनिट। ये यहाँ पे एबीआर के थ्रू पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर इट इज मेजर्ड हियर विद द हेल्प ऑफ सीटी एंड पीटी। ये के अकॉर्डिंगली कितना वोल्टेज है, कितना करंट, कितना लोड है और कितना वोल्टेज है, उसको मेजर करके ये डिसाइड करता है। अगर वोल्टेज कम है तो फायरिंग एंगल, अगर सपोज वोल्टेज डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या, हमें वोल्टेज इंप्रूव करना है, फील्ड करंट बढ़ाना है, तो उसका फायरिंग एंगल हमें कम करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली फायरिंग कंट्रोल यूनिट, ये सपोज माइक्रो कंट्रोल, इट कैन बी माइक्रो कंट्रोलर। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 थायरिस्टर्स हैं, 6 थायरिस्टर्स को ये सिग्नल यहाँ से जाता है। सो एज टू मेंटेन, कितना सिग्नल जाएगा, so the current should be such that it provide the field current which make it as a 1 per unit। और फायरिंग कंट्रोल यूनिट को जो पावर चाहिए वो इसके टर्सरी वाइंडिंग से आ रहा है, ट्रांसफार्मर के टर्सरी वाइंडिंग से आ रहा है। ओके, दिस इज ए प्रोटेक्टिंग सर्किट। सपोज करिए बिकॉज ऑफ सम रीजन इफ देयर इज ए फेलियर हियर, यहाँ से कोई सप्लाई यहाँ नहीं जा पा रहा है, किसी कारण से फेलियर हो गया, और दिस देयर कैन बी डिसिंक्रोनाइजेशन। मतलब डिसिंक्रोनाइजेशन कब होता है, जब हमारा एंगल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाए। मतलब हमारा एक तो वोल्टेज स्टेबिलिटी था और एक एंगल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम था, पावर एंगल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम था, जिसमें मींस सिस्टम द जनरेटर में भी में लूज द सिंक्रोनिज्म। जनरेटर हमारा लोड के साथ अगर सिंक्रोनिज्म लूज कर दिया तो ये इसका कनेक्शन ग्रिड से नहीं रहेगा, केवल सिंपली रोटेट करेगा। एट दैट टाइम वेरी हैवी करंट विल फ्लो इनटू दिस फील्ड में, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हियर, यहाँ फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हियर, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ
और बैक करंट इधर फ्लो होना शुरू होगा। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दैट हैवी करंट टू फ्लो फ्रॉम हियर टू द रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर को खराब नहीं करे, इसलिए ये उस समय स्विच ऑफ करके, इट इज क्लोज आर सर्किट, ये इसको शॉर्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज द स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। इससे बेनिफिट क्या हुआ? स्टैटिक व्हाट आर द बेनिफिट सीम्स ओवर द सेल्फ एक्साइटेड और डीसी एक्साइटर। डीसी एक्साइटर के कंपैरिजन में देखिए यहाँ डीसी जो डीसी जनरेटर था वो नहीं है। अब डीसी जनरेटर नहीं है तो क्या नहीं है? कम्यूटेटर नहीं है, स्पार्किंग नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये फील्ड करंट है, ये वेयर इज द फील्ड करंट? ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में ये फील्ड करंट कहां पर होता है? Who will inform? कौन बताएगा? ये फील्ड करंट कहां पे होता है? अल्टरनेटर में। जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है, एसी जनरेटर है, उसमें फील्ड करंट कहां होता है? आर्मेचर पे सर। आर्मेचर मींस रोटर नहीं, ये फील्ड करंट होता है रोटर पे। इधर आर्मेचर है, आर्मेचर पे स्टेटर है, फील्ड करंट यहाँ है। फील्ड करंट रोटर के साथ रोटेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ? ये रोटेशन में है, और रेक्टिफायर स्टेशनरी है, ये बाहर है, और ये रोटेटरी पार्ट है। अगर ये रोटेटरी पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट है, तो ये कनेक्ट कैसे होगा? इसलिए ये स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग के थ्रू ये इससे कनेक्ट होगा। तो स्लिप रिंग्स तो हैं, लेकिन कम्यूटेटर नहीं है। कम्यूटेटर में क्या होता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है, तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग होती है। स्लिप रिंग है तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग नहीं होगी, तो मेंटेनेंस की वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्दो देयर इज रोटेटरी पार्ट तो है, लेकिन इसमें कम्यूटेटर हमने रिमूव कर दिया है, इसलिए इसे स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं। तो स्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरेटर डीसी जनरेटर नहीं है, फील्ड हमारा डीसी जनरेटर नहीं है, इसलिए इसे स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं। स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम, इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड द IEEE, ये IEEE टाइप 1S एक्साइटेशन सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, वो क्या था? IEEE टाइप 1 एक्साइटेशन सिस्टम, जो बूस्ट बक एक्साइटेशन सिस्टम के बाद IEEE टाइप 1 था। दिस इज IEEE टाइप 1S, इट मींस देयर इज सम मॉडिफिकेशन। इसमें केवल ये वाला पोर्शन तो मॉडिफाई हो गया है, बकाया चीजें सेम है। ये दिस इज मॉडिफाइड, तो इसके लिए ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। IEEE टाइप 1S एक्साइटेशन सिस्टम, देखिए ये 1 + STR वही है, K 1 + STA वही है, और KESTE यही है। S जो IEEE टाइप 1 था, S K 1 + STA, अब ये यहाँ की बजाय यहाँ था, ये यहाँ था, बस इतना डिफरेंस आया है। ये यहाँ पे था, इसकी जगह आपका ये आ गया, दिस इज द डिफरेंस। तो हमने फिर इसका इक्वेशन VF बाई दिस, देन इसमें GS बाई 1 + GSHS, देन दिस डिवाइड बाई दिस, यहाँ से VS डिवाइडेड बाई EFD। इसमें हमने ये 4-5 इक्वेशन लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग 4-5 इक्वेशंस यू विल गेट दिस is the statistical model. This is the statistical model of the IEEE type 1S excitation system, which is for the static excitation system, उसका है। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए सेम फॉर्मूला है, स्टेप, जो मैटलैब का सेम कमांड है, स्टेप, यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए स्टेप A, BU, ये A है, ये B है, A, BU, C, D, 1, T। C और D हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, B1 देखना है कि B3 देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हम C डिसाइड करते हैं। इन दिस वे वी कैन सी द परफॉर्मेंस एंड वी कैन कंपेयर। देखिए बूस्ट बक एक्साइटेशन सिस्टम है, तब क्या परफॉर्मेंस प्लॉट कर लें, देन IEEE टाइप 1 सिस्टम का परफॉर्मेंस प्लॉट करें, PID कंट्रोलर लगाएं, देन परफॉर्मेंस प्लॉट करें, फिर ये टाइप 1S एक्साइटेशन सिस्टम लें, इसकी परफॉर्मेंस प्लॉट करें, देन यू कंपेयर। हर एक में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। So this is about the some type of excitation system. In the next class, we will take other excitation system. One is the brushless excitation system, and one more. उसके बाद we will describe what is the how to control the what is voltage stability and voltage control. Then this unit will be in the next or next to next lecture. This will be over. This unit will be over. Okay. तो इसमें if you want to ask any question up to now, you can ask.